Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. We are discussing the morphology of angiosperms of class 11th botany और अभी तक हमने डिस्कस किया कि रूट्स क्या होते हैं, what are various modifications of the roots. We have discussed about the stem and we have started our discussion on the leaf of angiosperm plants. तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया लीफ बेसिकली होता क्या है, ये कहाँ से अराइज होता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए लीफ. तो मैंने आपको बताया हर कोई लीफ जो है हर किसी लीफ के तीन पार्ट होते हैं. एक हमारे पास लीफ बेस होता है और उसके बाद हमारे पास पीटियोल होता है, उसके बाद हमारे पास लीफ लेमिना होता है या लीफ ब्लेड होता है. हर किसी लीफ के तीन पार्ट्स होते हैं. एक हमारे पास है लीफ बेस, one is leaf base, second part is that is called as petiole. Petiole is stalk of the leaf, and third is leaf lamina. Leaf lamina, or this is also called as leaf blade. Leaf blade. और मैंने आपको बताया इस लीफ ब्लेड के अंदर अगर मैं एक लीफ का डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, दिस इज अ टिपिकल लीफ, दिस इज अ लीफ, you know this is leaf base, this is petiole and this is lamina. हमने देखा कि इस लेमिना के अंदर we are having what's called as veins and veinlets. Remember inside the leaf lamina or in the leaf lamina we are having veins and veinlets. These veins and veinlets, they act as channels for transportation of water, minerals and food materials. मैंने आपको ये कल बताया. तो मैंने आपको बताया ये veinlets, veins and veinlets जो है, ये vein है, ये veins है. See, these are veins, and from these veins we get small veins. Those are called as veinlets. तो ये मैंने आपको बताया ये veinlets है. These are veinlets, these are veins, and the central vein. This is also a vein, but this is central vein. The vein that is present at the center of the leaf lamina, this vein is also called as midrib. This is also called as midrib. So midrib is nothing, it is simply the central most vein of a leaf. It is called as midrib. It is quite prominent. ये prominent होती है, ये well defined होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं midrib. तो मैंने आपको बताया ये जो veins है या veinlets है, इनका function है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं. एक मैंने आपको बताया ये वेन्स एंड वेनलेट्स जो है दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लीफ लेमिना. ये लीफ लेमिना को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो ये वेन्स और वेनलेट्स है दे एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसलोकेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स. ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया. ये वेन्स जो है, दीज वेन्स एंड वेनलेट्स दे आर अरेंज्ड in a proper way in the leaf lamina. ये veins और veinlets जो है इनका एक proper arrangement होता है leaf lamina के अंदर. इन veins और veinlets की arrangement को हम बोलते हैं botany में venation. तो आज हम डिस्कस करेंगे venation क्या होता है. venation, leaf venation. Leaf venation is the arrangement of veins and veinlets. Veins and veinlets in the leaf lamina. In the leaf lamina is known as venation. शाबाश. मैंने आपको बोला एक लीफ लेमिना के अंदर, एक लीफ ब्लेड के अंदर वेन्स और वेनलेट्स होते हैं. किस तरह ये अरेंज होते हैं, द वे दीज वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड इन द लीफ लेमिना, दिस इज नोन एज वेनेशन. दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लीफ लेमिना. Remember, not inside the leaf, but these veins and veinlets, they are present in the lamina, in the leaf blade part of the leaf. So the arrangement of veins and veinlets in the leaf lamina, it is known as venation. And there are two types of venation. One is, there are two types of
there are two types of venation. Types of venation, दो तरह के वेनेशन होते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर. एक हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, एंड सेकंड इट्स नोन एज पैरेलल वेनेशन. See, this is one leaf. This is a leaf blade. This is petiole, and this is leaf base. See, this is the central vein known as midrib. These are the lateral veins. See, the lateral veins, they give rise to veinlets. These veinlets, they form a network-like structure. This network-like arrangement of the veins and veinlets is known as reticulate venation. So मैं यहाँ पे लिखूंगा the type of venation in which the veins and veinlets form a network in the leaf lamina. Shabash. It is known as reticulate venation. वो वेनेशन जिसमें वेन्स और वेनलेट्स, खासकर वेनलेट्स जो है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं लीफ लेमिना के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक ग्रीक वर्ड है रेटिकुलम इज नेटवर्क, उसी से बना है रेटिकुलेट. व्हेन वेन्स एंड वेनलेट्स दे फॉर्म ए नेटवर्क इन द लीफ लेमिना, this type of venation, this type of arrangement of veins and veinlets is known as reticulate venation. And remember the very important point that reticulate venation is characteristic feature of dicots. जितने भी dicots है, dicots में हमेशा आपको reticulate venation देखने को मिलेगी. याद रखना, जितने भी dicots है, डाइकॉट्स वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स आप जब जमीन में डालते हैं, जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं, दो कॉटिलिडन्स वहां पे बनते हैं. उन सभी प्लांट्स जिनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं, उनके लीव्स में आपको पैरेलल वेनेशन नहीं दिखेगी, बल्कि उनके लीव्स में आपको हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन नजर आएगी कि वहां पे वेन्स और वेनलेट्स जो है दे फॉर्म ए नेटवर्क, दे फॉर्म ए रेटिकुलम. And that is why this venation is called as reticulate venation. So simply we will remember the arrangement of veins and veinlets, it's known as venation. If the veins and veinlets they form a network-like structure in the leaf lamina or leaf blade, this type of venation is known as reticulate venation. And the second type of venation is called as parallel venation. As the name indicates, here the veins and veinlets they do not form. They do not form a network, rather they are parallel to one another. This is maize leaf. अगर आप देखोगे, this is the procentral midrib. This is the central midrib, and these are the lateral veins. So what happens? Parallel venation is the type of venation in which the veins they never join with one another, rather they run parallel to one another. This type of venation is known as parallel venation. दूसरा venation जो हमारे पास है parallel venation है. Venation हम क्या बोलेंगे? The type of venation in which the veins run parallel to one another
one another and do not form a network. It is known as पैरेलल वेनेशन. इसी को हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. तो याद रखना, पैरेलल वेनेशन में वेन्स पैरेलल चलती है, रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स जो है नेटवर्क बनाते हैं, रेटिकुलम बनाते हैं. तो मैंने इसीलिए लिखा पैरेलल वेनेशन, द टाइप ऑफ वेनेशन इन विच द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर. सी, ये एक वेन है, दिस इज पैरेलल टू दिस वेन, दिस इज पैरेलल टू दिस वेन, दिस इज पैरेलल टू दिस वेन एंड सो ऑन. शाबाश, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. एंड एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेनेशन, यू विल सी पैरेलल वेनेशन इन मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स. जहां पे मैंने आपको बोला डाइकॉट्स में आपको रेटिकुलेट वेनेशन नजर आएगी, वहीं पे मैंने आपको बोला मोनोकॉट्स के अंदर आपको पैरेलल वेनेशन नजर आएगी. मोनोकॉट्स के अंदर हमेशा आपको पैरेलल वेनेशन नजर आएगी. तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना, दिस इज कॉल्ड एज venation. We are having two types of venation. One is called as reticulate venation, that's present in dicots. We are having parallel venation, that is present in monocots. Next we will discuss about the types of leaves. And so far as types of leaves are concerned, we are having two types of leaves in angiosperms. One is called as simple leaf, another is called as compound leaf. समझना है की वाली बात है, सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है. हमारे पास सिंपल लीव्स वो लीव्स होते हैं जिनके एंटायर मार्जिन्स होते हैं. याद रखना, अगर कोई लीफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लीफ बनाया है, इसका लीफ लेमिना जो है इसमें एंटायर मार्जिन्स है, कोई इसमें इनग्रोथ या कोई इसमें बाइफरकेशन या डेंटेशन या इसका मार्जिन जो है वो ये पूरा मार्जिन है इसका. ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं सिंपल लीव्स. एक पॉइंट मैंने बताया, द लीव्स हैविंग एंटायर मार्जिन्स आर नोन एज स्मूथ लीव्स, दे आर कॉल्ड एज सिंपल लीव्स. रिमेंबर, द लीव्स हैविंग एंटायर मार्जिन्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीव्स. एक पॉइंट. दूसरा, समटाइम्स देयर आर सर्टेन लीव्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सिंपल लीव्स. लेकिन उन लीव्स में क्या है, उनके मार्जिन्स एंटायर नहीं है, उनमें इंसिजन्स है, डिप्रेशंस है, कट्स है, उनमें इंसिजन्स है. याद रखना, वर्ड हम इंसिजन यूज करते हैं. इंसिजन मीन्स कट, इनके मार्जिन पे कट होता है. लेकिन सी, दिस इज मिडरिब, दिस कट, दिस इंसिजन डज नॉट रीच टू द मिडरिब. द टाइप ऑफ लीव्स हुज मार्जिन्स इज आइदर स्मूथ और एंटायर, और व्हेन इंसाइज्ड the incisions do not reach up to the midrib, such leaves are called as simple leaves. याद रखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा the type of leaves. Remember, the type of leaves whose margins are entire or when incised the incisions do not reach up to the midrib. Shabash. Such leaves are known as simple leaves. आपको कोई लीव मिलता है सिंपल, याद रखना उस लीव के जो मार्जिन्स है वो बराबर है, एंटायर मार्जिन्स है, कोई कट नहीं है मार्जिन में. ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं सिंपल लीव्स. आपको दूसरा लीव मिल गया, आप उस लीव के मार्जिन एंटायर नहीं है, उस लीव के मार्जिन्स में कट्स है, इंसिजन्स है, लेकिन याद रखना अगर वो इंसिजन्स मिडरिब तक नहीं पहुंचते हैं तब भी हम इसे बोलते हैं सिंपल लीव. अगर वो इंसिजन्स मिडरिब तक पहुंचते हैं, जब मिडरिब तक वो इंसिजन्स पहुंचेंगे उसमें फिर लीफलेट्स होंगे. ऐसे लीव को आप सिंपल लीव नहीं बोलेंगे, ऐसे लीव को आप बोलेंगे कंपाउंड लीव. तो याद रखेंगे सिंपल लीव
are simple leaves are those leaves which are having either entire margins or whose margins are incised but the incisions do not reach up to the midrib. यहाँ पे आप देखिए ये मेरे पास लीफ है, इसका मार्जिन जो है एंटायर है, ये सिंपल लीफ है. ये मेरे पास जो दूसरा लीफ है इसके मार्जिन्स पे इंसिजन्स है, लेकिन ये इंसिजन्स मिडरिब तक नहीं पहुंचते हैं, मिडरिब तक नहीं पहुंचते हैं. ये भी सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है, ये भी सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ विद एंटायर मार्जिन है, ये सिंपल लीफ विद इंसाइज्ड मार्जिन है, इंसाइज्ड मार्जिन है. शाबाश. सिंपल लीव्स जो है, सिंपल लीव्स do not have leaflets. सिंपल लीव्स में लीफलेट्स नहीं होते, याद रखना. सिंपल लीफ के अंदर लीफलेट्स नहीं होते हैं. उसके बरक्स हमारे पास जो दूसरा टाइप है लीव्स का, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं. ये लीफलेट्स असल में कैसे बनते हैं? जिनमें लीफलेट्स होते हैं, लीफलेट्स असल में कैसे बनते हैं? क्योंकि इनके मार्जिन के ऊपर इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं, कट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दोज कट्स रीच अप टू द मिडरिब और अप टू द टिप ऑफ पीटियोल. वो कट्स जो है वो तो या मिडरिब तक पहुंचते हैं या तो वो टिप ऑफ पीटियोल तक पहुंचते हैं. हमारे पास अगर लीव्स है, उस लीव के अंदर लीफलेट्स है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीव. या हम इस तरह भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड लीव्स वो लीव्स होते हैं जिनके मार्जिन पे इंसिजन्स होते हैं और वो इंसिजन जो है मिडरिब या टिप ऑफ पीटियोल तक पहुंचते हैं. ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स. याद रखना. यहाँ पे आप देखिए मेरे पास लीफ है, ये लीफ है, ये बेस है, ये पीटियोल है, ये लेमिना था. इस लेमिना में क्या हो गया? इंसिजन्स थे मार्जिन पे, वो इंसिजन जो है कट्स जो थे वो टिप ऑफ द पीटियोल तक पहुंच गए. हमारे पास लीफलेट नंबर 1 बन गया, दूसरा लीफलेट और तीसरा लीफलेट बन गया. तो ये जो लीफ है ये कंपाउंड लीफ है. आप यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक मिडरिब है, ये हमारे पास एक मिडरिब है. इसको हम कंपाउंड लीफ में कभी रैक्स भी बोलते हैं. ये असल में लीफ लेमिना था, लीफ लेमिना था, तो ये रैक्स बोलते हैं हम इसको, RACHIS, रैक्स हम इसको बोलते हैं. ये लेमिना में, लेमिना पार्ट जो लीफ का था, इसके मार्जिन पे इंसिजन जो है वो इंसिजन जो है वो मिडरिब तक पहुंच गए. इस तरह हमारे पास इस लीफ लेमिना के अंदर, लीफ के अंदर लीफलेट्स बन गए. एक लीफलेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये सारे जो है ये लीफलेट्स है. ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं. याद रखना ऐसे लीव्स जिसमें लीफलेट्स होते हैं. शाबाश. उनको हम कंपाउंड लीव, या तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, कंपाउंड लीव्स are the type of leaves whose margins are incised, whose margins are cut, incised, and the incisions reach up to the midrib or up to the tip of petiole. याद रखना ऐसे लीव्स जिनके मार्जिन्स पे इंसिजन्स होते हैं और वो इंसिजन्स पहुंचते हैं अप टू द मिडरिब और अप टू द टिप ऑफ द पीटियोल. सच लीव्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड लीव्स. सिंपल लीव्स में के भी मार्जिन पे इंसिजन्स हो सकते हैं, लेकिन वो इंसिजन्स कभी भी मिडरिब या टिप ऑफ पीटियोल तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम सिंपल लीव्स. कंपाउंड लीव्स में हमेशा इंसिजन्स होंगे. वो इंसिजन्स जो है वो टिप ऑफ द पीटियोल या अप टू द मिडरिब या अप टू द टिप ऑफ पीटियोल पहुंचते हैं. उनको हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स. तो याद रखना कंपाउंड लीव्स के मार्जिन्स पे इंसिजन्स होते हैं एंड दोज इंसिजन्स रीच अप टू द मिडरिब और अप टू द टिप ऑफ द पीटियोल टू फॉर्म लीफलेट्स. शाबाश. लीफलेट्स आर प्रेजेंट. To form leaflets in compound leaves, leaflets are present.
शाबाश। एक पॉइंट में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा चाहे सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड लीफ हो, उसके पीटियोल के या उसके एक्सल में एक बड होगा। याद रखना, हमेशा सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ के एक्सल के ऊपर एक बड होगा, लेकिन जो कंपाउंड लीफ की लीफलेट है उसके एक्सल में कभी बड प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे कभी बड प्रेजेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे कभी बड प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो याद रखना, हमारे पास लीव्स जो है ये दो तरह के हैं। एक हमारे पास है सिंपल कंपाउंड लीव्स, एक हमारे पास है सिंपल लीव्स, दूसरा हमारे पास है कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स वो लीव्स होते हैं जिनके मार्जिन्स या तो एंटायर है या इंसिजन्स प्रेजेंट है, लेकिन वो इंसिजन्स मिडरिब या टिप ऑफ पीटियोल तक नहीं पहुंचते हैं। इस तरह सिंपल लीफ के अंदर आपको लीफलेट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। कंपाउंड लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें लीफलेट्स होते हैं। वो लीफलेट्स कैसे बनते हैं? क्योंकि ऐसे लीव्स के मार्जिन्स के ऊपर इंसिजन्स होते हैं, कट्स होते हैं। वो कट्स जो है वो मिडरिब या टिप ऑफ पीटियोल तक पहुंचते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं, उसके अंदर लीफलेट्स बनते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। तो याद रखना, सिंपल लीफ में लीफलेट्स एब्सेंट, कंपाउंड लीफ के अंदर लीफलेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास एक कंपाउंड लीफ है, इसके भी दो टाइप्स है। एक हमारे पास है पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक हमारे पास है पामेटली कंपाउंड लीफ। मैं अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, एक हमारे पास है पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक हमारे पास है पामेटली कंपाउंड लीफ। शाबाश। ये हमारे पास एक एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज रेक्स, इसको हम बोलते हैं रेक्स। ये रेक्स असल में क्या है? दिस इज मिडरिब, ये मिडरिब होती है, मिडरिब ऑफ लीफ लेमिना। मैंने आपको बताया, मैं आपको समझा रहा हूं पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है। मैंने आपको बताया ये हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं रेक्स। कंपाउंड लीफ की इस एक्सिस को हम बोलते हैं रेक्स। शाबाश। पिनेटली कंपाउंड लीफ की इस एक्सिस को हम बोलते हैं रेक्स। ये रेक्स असल में क्या होता है? इट्स मिडरिब ऑफ लीफ लेमिना, ये लीफ लेमिना की मिडरिब होती है। इसमें क्या होता है? यू विल सी लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन इट, सी these are leaflets, these are leaflets, these are leaflets, these are leaflets, these are leaflets। शाबाश। आपने क्या देखा? वो लीफ जिसमें लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस के साथ जुड़े होते हैं। याद रखना, ऐसा कंपाउंड लीफ जिसके लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस के साथ जुड़े होते हैं, उस एक्सिस को हम बोलते हैं रेक्स। वो रेक्स असल में मिडरिब होती है लीफ लेमिना की। ऐसे लीफ को हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। फिर से मैं दोहराता हूं, ऐसा कंपाउंड लीफ जिसके लीफलेट्स एक कॉमन एक्सिस रेक्स के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स। दे आर कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिनेटली कंपाउंड लीव्स ऐसे लीव्स होते हैं। द टाइप ऑफ, ये बेसिकली टाइप है किसका? टाइप ऑफ कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव्स, द टाइप ऑफ कंपाउंड लीव्स। शाबाश। where the leaflets are attached to a common axis, known as rex, RACHIS। बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होता है रेक्स क्या होता है। रेक्स असल में एक एक्सिस होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर, जिसके साथ जुड़े होते हैं लीफलेट्स। ये रेक्स अगर हम असल में देखेंगे ये क्या होता है, ये बेसिकली मिडरिब होती है लीफ लेमिना के अंदर। जब ये लीफ लेमिना के अंदर इंसिजन्स डेवलप हो जाते हैं, कट्स डेवलप हो जाते हैं, वो कट्स मिडरिब तक पहुंच जाते हैं। अब इस मिडरिब का नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम पड़ गया रेक्स। तो याद रखना, पिनेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर
जितने भी लीफलेट्स होते हैं वो एक कॉमन एक्सिस के साथ जुड़े होते हैं डिफरेंट पॉइंट. सी दिस इज हियर, दिस लीफलेट इज हियर, दिस लीफलेट इज हियर एंड सो ऑन. So the type of compound leaf where the leaflets are attached to a common axis known as rachis is known as pinnately compound leaf. Example is neem plant. You will see such type of arrangement in case of neem plant. Neem plant, Azadirachta. नीम का जो बॉटनिकल नेम है that is Azadirachta. नीम के अंदर आपको कंपाउंड लीफ मिलेंगे, लेकिन याद रखना नीम के अंदर कौन से कंपाउंड लीफ मिलेंगे? पिनेटली कंपाउंड लीफ. तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स आर दोज कंपाउंड लीव्स where leaflets are attached to a common axis. That common axis is known as rax. That rax basically represents the midrib of leaf lamina. ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स. कंपाउंड लीव्स हमें देखने को मिलेंगे किसके अंदर? नीम के अंदर. याद रखना टेक्स्ट पे एग्जांपल दिया हुआ है. नीम का जो एग्जांपल है, नीम के अंदर आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स मिलेंगे. शाबाश. दूसरे हमारे पास क्या है? हमारे पास है पॉमेटली कंपाउंड लीफ. हमारे पास दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं पॉमेटली कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ हथेली जैसा. पॉमेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है? आप देखिए, ये हमारे पास लीफ बेस है, ये पीटियोल है, ये एक लीफलेट है, ये दूसरी लीफलेट है, ये तीसरी लीफलेट है. शाबाश. ये जो है ये चौथी लीफलेट है, ये पांचवी लीफलेट है एंड सो ऑन. सो इट्स आपको क्या लग रहा है? ये हाथ की उंगलियों जैसे है. आप इन उंगलियों को समझ लीजिए लीफलेट्स. जो मेरे पास जो बाजू है, हाथ के पीछे जो बाजू है, दैट इज एक्चुअली टिप ऑफ पीटियोल. टिप ऑफ पीटियोल जो है, या आप सिंपली याद रखिए, ये जो लीफलेट्स है, उंगलियां जो रिप्रेजेंट करती है, दे रिप्रेजेंट लीफलेट्स. सो ऑल दीज फिंगर्स, दीज लीफलेट्स, दे आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट, not to a common axis. They are attached to a common point. Such leaves where the leaflets are attached to a common point. That common point is basically the tip of the petiole. Shabash. Such leaves are known as compound leaves. Shabash. I will write here the type of leaves. The type of leaves where leaflets are attached to a common axis, attached to a common point, ब्रैकेट में लिखता हूं टिप ऑफ पीटियोल. वहां मैंने बताया where the leaflets are attached to a common axis. That axis is known as rax. That rax is actually midrib. Remember, this is very important point from entrance point of view. But in case of palmately compound leaves, I told you that the leaflets are attached to a common point. And remember, this common point is never a midrib. This is the tip of petiole. Shabash. These are known as palmately compound leaves. These are known as palmately compound leaves. Shabash. This is leaflet 1, this is leaflet 2, this is leaflet 3, this is leaflet 4, this is leaflet 5. They are attached to a common point. This is the common point. And this is petiole. This common point is then the tip of the petiole. So remember the type of leaves where leaflets are attached to a common point. That common point is actually tip of the petiole. They are known as palmately compound leaves. इनको हम बोलते हैं palmately compound leaves. And palmately compound leaves, you will see these palmately compound leaves in a plant. That plant is known as silic cotton. Bambusa है ये, bambusa. It's not
दिस इज बोम्बैक्स सीबा, CIBA। सिलिक कॉटन का जो बॉटेनिकल नेम है दैट इज बोम्बैक्स सीबा। ये एक प्लांट पंजाब में देखने को आपको मिलेगा। इसके अंदर palmatory कंपाउंड लीव्स होते हैं। याद रखना, सिलिक कॉटन इज द एग्जाम्पल ऑफ palmatory compound leaves. You will see palmatory compound leaves in a plant known as silic cotton, and the botanical name of silic cotton is Bombax ceiba. BOMBAX. Bombax ceiba is the botanical name of this plant, silic cotton. इसके अंदर आपको कंपाउंड लीव्स देखने को मिलेंगे। So we are having two types of leaves. एक आपने देखा सिंपल लीव्स होते हैं, एक आपने देखा कंपाउंड लीव्स होते हैं। एक आपने देखा सिंपल लीव्स जो है वो क्या होते हैं, उनमें या तो एंटायर मार्जिन है या इंसाइज्ड मार्जिन है। लेकिन अगर इंसाइज्ड मार्जिन है तो वो इंसिजन्स कभी भी मिडरिब या टिप ऑफ पेटियोल तक नहीं पहुंचते हैं। जबकि इसके बरक्स, इसके अपोजिट में कंपाउंड लीव्स के अंदर लीफलेट्स होते हैं, उनके लीव्स के ऊपर इंसिजन्स होते हैं, उनके लीफ मार्जिन्स के ऊपर इंसिजन्स होते हैं, और वो हम इंसिजन्स हमेशा टिप ऑफ द पेटियोल और अप टू द मिडरिब पहुंचकर लीफलेट्स बनाते हैं। तो सिंपल लीफ के अंदर लीफलेट्स नहीं होते हैं, कंपाउंड लीफ के अंदर लीफलेट्स होते हैं। कंपाउंड लीव्स के भी फर्दर टू दो टाइप्स है। एक हमारे पास है पिनेटली कंपाउंड लीव, एक हमारे पास है palmatory कंपाउंड लीव्स। तो मैंने आपको इनकी एग्जांपल्स भी बताए। थर्ड, वी विल फोकस ऑन अनदर टॉपिक दैट इज फाइलोटैक्सी। Phyllotaxy. Simply the arrangement of leaves on the stem or branch. The pattern of arrangement of leaves on the stem or branch is known as phyllotaxy. Simply एक स्टेम के ऊपर या एक ब्रांच के ऊपर लीव्स किस तरह से अरेंज होते हैं, इसको हम इन लीव्स के इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, द वे leaves are arranged on the stem or on the branch. This is simply called as phyllotaxy. So simply remember, the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch is known as phyllotaxy, or arrangement of the leaves on the stem or leaf, it's also called as phyllotaxy. Simply याद रखना किस तरीके से leaves arranged होते हैं stem या branch के ऊपर, उसको इसको हम बोलते हैं, इन लीव्स के इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। हमारे पास 3 मेन टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के हमारे पास 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है alternate phyllotaxy है हमारे पास, मैं समझाऊंगा। दूसरा हमारे पास है अपोजिट फाइलोटैक्सी। हमारे पास काफी सारे टाइप्स है, बट वी आर फोकसिंग ऑन योर NCERT टेक्स्ट बिकॉज दिस NCERT टेक्स्ट इज रोड मैप फॉर वी पीपल। ये आपके लिए रोड मैप है, हमारे लिए रोड मैप है। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। 3 तरह के फाइलोटैक्सी, एक हमारे पास है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एक हमारे पास अपोजिट फाइलोटैक्सी है, एक हमारे पास वर्ल्ड फाइलोटैक्सी है। मैं आपको डायग्रामिकली आपको ये समझाऊंगा कि क्या होते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, क्या होती है अपोजिट फाइलोटैक्सी, क्या होती है वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ये मैं बता देता हूं, आपने समझ लिया। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ऑन द ब्रांच इज नोन एज फाइलोटैक्सी। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ये एक स्टेम है, ये मेरे पास स्टेम है।
Remember, this is CITEM because the arrangement of leaves on the CITEM or on the branch, this is known as phyllotaxy. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने CITEM ले लिया, इस CITEM में मेरे पास यहां से एक लीफ इमर्ज हो गया, ठीक है। इस CITEM में इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नोड, वेरी गुड, दिस इज नोड। ये एक और नोड है, यहां देखिए इस तरफ लीफ इमर्ज हो गया, ठीक है। ये मेरे पास एक और नोड है, यहां से भी लीफ इमर्ज हो गया, आप देखिए इस तरफ है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे भी टिप पे एक लीफ है, ये मेरे पास आप देखिए यहां से भी एक लीफ इमर्ज हो गया, शाबाश। आपने क्या देखा, आपने देखा लीव्स आर बोर्न ऑन द CITEM alternately with a single leaf on each node। शाबाश। ऐसा फाइलोटैक्सी जिसमें हर किसी नोड के ऊपर एक सिंगल लीफ बनेगा और लीव जो है दे आर अरेंज्ड अल्टरनेट टू वन अनदर, सच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नोन एज अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। फिर से मैं दोहराता हूं, ये मेरे पास CITEM है, ये लीव्स है, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। मैंने इसको कैसे नोड बताया, क्योंकि ये वो पॉइंट है CITEM के ऊपर जहां से एक लीफ इमर्ज होता है। तो आप देखिए एक लीफ इधर की तरफ इमर्ज हो गया, एक लीफ इधर की तरफ इमर्ज हो गया, एक लीफ इधर की तरफ इमर्ज हो गया, एक लीफ इधर की तरफ इमर्ज हो गया। यानी इस लीफ के कंपैरिजन में ये लीफ अल्टरनेट है, इस लीफ के कंपैरिजन में ये लीफ अल्टरनेट है, इस लीफ के कंपैरिजन में ये लीफ अल्टरनेट है। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। शाबाश। मैं यहाँ पे लिखूंगा द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, द टाइप ऑफ PT मैंने लिखा फाइलोटैक्सी, शाबाश। where a single leaf arises from each node and are arranged alternatively with one another, Shabash. The type of phyllotaxy where a single leaf arises from each node, हर किसी लीफ से आपको हर किसी नोड से आपको एक लीफ मिलेगा, और ये जो लीव्स है, जितने भी लीव्स है, ये हमेशा अरेंज होंगे अल्टरनेटिवली विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर। एग्जाम्पल कहां पे आपको मिलेगा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, चाइना रोज इज हिबिस्कस, बॉटनिकल नेम चाइना रोज का हिबिस्कस है। दूसरी एग्जाम्पल मस्टर्ड है। रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स, दे आर गिवन इन योर NCERT टेक्स्ट। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज सनफ्लावर। याद रखना, ये तीन एग्जाम्पल्स जो है, ये एग्जाम्पल्स है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको चाइना रोज के अंदर मिलेगी, हिबिस्कस के अंदर मिलेगी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको मस्टर्ड के अंदर मिलेगी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको सनफ्लावर के अंदर मिलेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे पास एक एक्सिस है, ये CITEM है। इस CITEM में नोड्स है, नोड्स वो रीजन्स है जहां से एक लीफ, ब्रांच या फ्लावर अराइज होता है। इस केस में यहां से एक लीफ अराइज होता है, इसलिए मैंने बोला ये नोड है। आप देखिए हर किसी नोड से एक सिंगल लीफ अराइज होगा, और दोज लीव्स आर अरेंज्ड अल्टरनेट टू वन अनदर। ऐसे अरेंजमेंट ऑफ ऐसी फाइलोटैक्सी को हम बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपको चाइना रोज के अंदर मिलेगी, हिबिस्कस रोजा साइनियंसिस इसका बॉटनिकल नेम है। मस्टर्ड इज ब्रासिका एंड थर्ड इज सनफ्लावर इज हेलियंथस। इन तीनों के अंदर आपको मिलेगी अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसके बरक्स जो दूसरी फाइलोटैक्सी है, दैट इज अपोजिट फाइलोटैक्सी। जहां मैंने आपको बोला अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में CITEM के हर किसी नोड से एक लीफ बनेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप अपोजिट फाइलोटैक्सी देखोगे, एंड यू विल सी कि हमेशा एक नोड से एक लीफ नहीं बनेगा, एक नोड से दो लीव्स बनेंगे। सी, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज CITEM।
This is leaf at the tip. This is leaf at the tip. See, this is one leaf on the node, one another leaf from the same node. Two leaves arise from a single node, and those leaves are arranged opposite to one another. See, ये देखिए दूसरा, शाबाश, दिस इज अपोजिट अरेंजमेंट. शाबाश, मैं लिखूंगा अपोजिट फाइलोटैक्सी. अपोजिट फाइलोटैक्सी वो फाइलोटैक्सी होती है जिसमें हर किसी नोड से दो दो लीव्स आप इमर्ज हो जाएंगे, अराइज होंगे. दो हर किसी नोड के ऊपर दो लीव्स होंगे, और वो जो लीव्स है दे आर अरेंज्ड अपोजिट टू वन अनदर. एक लीफ इस तरफ, दूसरा लीफ इस तरफ, एक लीफ इस तरफ, दूसरा लीफ इस तरफ. ये जो है ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है. इसी तरह बाकी में भी यही केस है. दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नोन एज अपोजिट फाइलोटैक्सी. मैं लिखूंगा द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, टीटी इज फाइलोटैक्सी, वेयर two leaves arise from each node, and the leaves are opposite to one another. Arranged leaves are arranged opposite to one another. Shabash, this type of phyllotaxy is known as opposite phyllotaxy. इसको हम बोलते हैं opposite phyllotaxy. And this opposite phyllotaxy is present in the examples of opposite phyllotaxy are calotropis. We are having this plant calotropis. Remember, इसमें आपको opposite phyllotaxy मिलेगी. And we are having second plant. That plant is called as गावा. गावा का प्लांट है. साइडियम गजवा गावा का प्लांट है. इसमें आपको मिलेगा अपोजिट फाइलोटैक्सी. तो याद रखना, ऐसी फाइलोटैक्सी जिसमें एक नोड से एक लीफ नहीं बल्कि दो लीव्स इमर्ज होंगे, अराइज होंगे, और वो जो लीव्स है वो अरेंज्ड होंगे अपोजिट टू वन अनदर. दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी is known as opposite phyllotaxy. And remember, this opposite phyllotaxy is reported in two plants. One is calotropis, another is gawa plant. Shabash. Then we are left with third type of phyllotaxy. That third type of phyllotaxy, it is known as whorled phyllotaxy. Now what is this whorled phyllotaxy? In case of whorled phyllotaxy, from a single node. See, for example, this is a citium. This is citium. This is a node, and this is another node. From a single node, not only one leaf arises, not only two leaves arise, but a group of leaves, 2, 3, or more than 3 leaves arise from a single node. Such arrangement of leaves is known as whorled arrangement. जिस तरह मैंने बोला फ्लावर के अंदर whorls होते हैं. शाबाश. ये एक लीफ आप देखिए ना, ये एक लीफ है, दूसरा लीफ है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. ये सारे लीव्स एक ही नोड से इमर्ज होते हैं. यहाँ पे भी आप देखिए ये सारे लीव्स एक ही नोड से इमर्ज होते हैं. दिस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज नोन एज whorled arrangement. दिस इज whorled arrangement. whorl से बनता है whorled arrangement of leaves या whorled arrangement of leaves. arrangement या whorled phyllotaxy हो गया ये. This is whorled phyllotaxy. शाबाश. मैं यहाँ पे लिखूंगा the type of phyllotaxy. शाबाश. where more than two leaves arise from each node,
and form a whorl. Form a whorl is known as, इसको हम क्या बोलते हैं? This is known as world phyllotaxy. This is known as world phyllotaxy. एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में हर किसी नोड से एक लीव, अपोजिट फाइलोटैक्सी में हर किसी नोड से दो लीव्स, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में हर किसी नोड से 2 से ज्यादा लीव्स इमर्ज होते हैं, और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में ये जो सारे लीव्स जो एक नोड से इमर्ज होते हैं वो ये एक वर्ल बनाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. And this world phyllotaxy is reported in a plant. That plant is known as Allistonia. Allistonia एक प्लांट है. इस Allistonia प्लांट के अंदर आपको world phyllotaxy मिलेगी. I hope that you have understood all the points which I have highlighted in today's lecture. In next lecture we will focus on various modifications of leaves. हम leaves की modifications देखेंगे कि लीव्स जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शन फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर.